Very good morning and warm welcome to you, dear students, to your history class. Today we will continue studying chapter 5, the foundation of the Swaraj, part 4. Now we will study and learn about the forts captured by Shivaji Maharaj, that is towards the establishment of Swaraj. Shivaji captured the forts of Torna, this is Torna, Murumdev Fort, also known as Raigad Fort, Kondana, also known as Sinagad Fort, and Purandar Fort. These are the real pics of these forts. Now let's go ahead. The capture of Javali, or also known as the Pratapgarh Fort. Chandra Rao More of Javali in Satara district was a powerful Sardar in the Adil Shahi. Shivaji Maharaj attacked Javali and captured Raigad. He built the Pratapgarh Fort in Mahabaleshwar in the Javali valley. This is the Pratapgarh Fort. It's a very huge fort from within. And this is the video. Now I will be showing you a video on the Pratapgarh Fort. There, looming large on the horizon, is Pratapgarh, one of the famous forts of Shivaji Maharaj, the great Maratha ruler. You drive only 8 miles west of Mahabaleshwar to reach this place. This magnificent structure is built on flat-topped rock and is strategically built for the armed forces of the yesteryear. As you explore through the cold winding staircase and the Chaurasta, or the secret doors of those times, time seems to freeze and take you back to those historical moments. Every stone, every insignia seems to tell a story of its own. This beautiful place, nestled among such natural beauty, is a must-see for everyone who visits Mahabaleshwar. The famous Bhavani temple stands inside this famous fortress. You can also get to view the Javli valley from this fort. And look at the statue of the great legendary king. What stature! This part of the fort is called Bale Killa. The old canyon, the artillery lying out in the open, tell a story of battles fought and battles won. Even the vagaries of nature have not destroyed them as yet. At the bottom of the fort, you can visit the Ram Vardayani temple. Is as yet used by the locals to discuss village matters. So children, you have seen now the Pratapgarh Fort. Now let's go and see the next thing. And the next part is called Defeat of Afzal Khan. This is one of the important events in history. We will now see the story of how Shivaji defeated the general of the Adil Shahi dynasty, Afzal Khan. Here you can see the picture of Afzal Khan. And now you will see the story. खान भाया, किंतु बीजापुर से निकलते हुए खान ने रास्ते में कई गांव लूटे, कई निरपराध लोगों को उसने ठार मारा।
मंदिरों का नाश किया। उसके बाद ही वो वाई पहुंचा। खान के द्वारा फैलाए गए अत्याचार की बातें शिवाजी महाराज के कानों तक पहुंची। तब वे प्रतापगढ़ में थे। राजा की पत्नी सईबाई साहिब बहुत ही बीमार थी। विपत्ति के घने बादल गड़गड़ाहट करते हुए छा रहे थे। खबर भयानक थी। यवनों ने तुलजापुर में भवानी की मूर्ति को खंडित किया। मानकेश्वर का शिवालय तोड़ा था। जबरदस्त आतंक मचाया था। यवनों द्वारा फैलाया हुआ अत्याचार शिवाजी सह नहीं सकते थे। उन्होंने ठान लिया अफजल खान का सामना करने की, जिसने अपने पिता को जंजीरों में बांधकर जुलूस निकाला था, जिसने अपने भाई से दगा किया था, जो स्वराज्य की धज्जियां उड़ाने के लिए चारों ओर जोम की झड़ियां बरसा रहा था। उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई तो मेरा नाम शिवाजी नहीं। उस वक्त रानी सईबाई मृत्युशैया पर थी। उनका ये अंतिम प्रवास राजा से देखा नहीं जाता था। फिर भी मन को मजबूत करके स्वराज्य की रक्षा के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करना ही था। कैसा महान था शिवाजी राजा का जीवन ही ऐसा था। प्रतिज्ञा अति कठिन थी और कठिन ना हो तो प्रतिज्ञा क्या। राजा ने खान से मिलने से पहले जीजा माता को वंदन किया। मां साहिब ने मन को मजबूत करते हुए राजा को विदा दी, आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, शिवा विजयी भव, चढ़ती दौलत तुम्हें फले। शिवा बुद्धि से काम लेना, संभाजी का ऋण चुकता कर दो। शिवा संभाजी का ऋण चुकता कर दो। अफजल खान से बदला लो। शिवाजी राजा प्रतापगढ़ पहुंचे। खान के मकान भाई में थे। खान ने शिवाजी को मुलाकात का संदेशा भिजवाया, पर शिवाजी को पूरा ख्याल था कि खान जरूर उनसे दगा करेगा। वो बहुत ही सावधान थे। उन्होंने चाल चलते हुए खान को बोला कि खान साहब, मैं अत्यंत भयभीत हो गया हूँ। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, पर वाई आकर आपसे मिलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ही प्रतापगढ़ पधारें। शिवा के मन की बात खान ताड़ नहीं सका। उसे लगा अपने आप को शूरवीर समझने वाला शिवाजी तो पहाड़ी का चूहा ही निकला। खान ने शिवाजी की बात मंजूर रखी और प्रतापगढ़ जाने का तय किया। शिवाजी ने प्रतापगढ़ पर एक भव्य मंडप बनवाया था। उसे हांडी झुम्मरों से सजाया गया था। गलीचे बिछाए गए थे। मलमल के नक्शीदार पर्दे लगाए गए थे। बड़ा ठाठ रचाया गया था। सवेरा हुआ। राजा ने शंकर की आराधना शुरू की। इस तरफ खान अपनी छावनी में था। भविष्य के यश के रंगों में खो गया था। खान मुलाकात के लिए निकला। खान मुलाकात के शामयाने में पहुंचा। तभी खान की गाफिल फौज के इर्द गिर्द राजा के मावड़ा चारों ओर छुपकर इशारे का इंतजार कर रहे थे। खान को इतनी जल्दी थी कि वो समय से पहले ही आकर खड़ा हो गया। उसे अपने विजय के बारे में कोई शंका नहीं थी। तभी तो वो गलतफहमी में था। शिवाजी महाराज ने बख्तर धारण किया, उस पर वस्त्र धारण किया, सर पर फौलादी शिरछत्र चढ़ा और उस पर हमेश की तरह पगड़ी बांध ली। बाघ ने बिच्छुआ और तलवार ली। श्री के दर्शन करके राजा निकले। पल भर में प्रतापगढ़ का माहौल बदल गया। सब गंभीर हो गए। गढ़ का बंदोबस्त बहुत ही बढ़िया था। खान से मुलाकात होते ही तोप चलाने का इंतजाम राजा ने करके रखा था। हर चीज की राजा ने सावधानी से योजना बनाई थी। राजा निकले। वे शांति पूर्वक आहिस्ता कदम भरने लगे। उनके साथ 10 अति विश्वासी साथी भी थे, पर वे मुलाकात की जगह से कुछ दूर ही रुकने वाले थे, क्योंकि मुलाकात के करार में ऐसा तय किया गया था। राजा खान की मुलाकात के लिए गढ़ से निकले। सारा प्रतापगढ़ शोक में डूबा हुआ था। कई मावड़ा सैनिक राजा के पास एकत्रित हुए और राजा से कहने लगे, राजे, हमें भी अपने साथ ले जाइए, हमें भी ले जाइए।
इन सब के प्रेम से राजा परिचित थे। उतने ही प्रेम से राजा ने कहा, मेरे साथ चलने के बजाय तुम सब गढ़ की रक्षा करना। मेरे भाइयों, संभाजी राजा का ख्याल रखना, स्वराज्य की रक्षा करना, शाहजी महाराज को मेरा मुजरा पेश करना। ऐसा कहते हुए राजा निकल पड़े, किंतु रास्ते में ही खान शामियों ने लगा के बैठा था, पर उसने सैयद बंडा नाम के वीर जवान को अपने साथ रखा था। साथ में किसी को भी यहाँ न लाया जाए, ये भी तय हुआ था। राजा ने खान को संदेशा भिजवाया, खान साहब, सैयद बंडा को दूर कीजिए, क्योंकि मैं अत्यंत भयभीत हूं। खान साहब, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, फिर भी मैं रहा गुनाहगार, इसलिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है। खान की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रोए हंसे। राजा के इस शक और डर के कारण खान और भी बेपरवाह हो गया। उसके दिल में तो खुशियां बहने लगी। अब इस बागी शिवा को आसानी से पकड़ सकेंगे, ऐसा वो सोचने लगा। उसने तुरंत ही सैयद बंडा को बाहर जाने का हुक्म दिया। राजा शामियाने में पधारे, तभी खान जरा आगे बढ़ा। उसका चौड़ा सीना देखकर यमदूत की भी धड़कनें तेज हो जाए, पर शिवाजी राजा शांत थे। टिकटिकी लगाए खान की ओर देख रहे थे। खान को यह बहुत ही स्वाभाविक लगा। अपनी कठोर भाषा और सुल्तानी मिजाज से उसने शिवाजी राजा से कहा, तुम अपने आप को बड़े हिम्मतवान और बहादुर समझते हो क्या? बेअदबी से गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? बादशाह आदि आदिल शाह, बादशाह कुतुब शाह और मुगल बादशाह के हुक्म को ठुकराकर तुम बेलगाम बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अहंकार तोड़कर तुम्हें पाठ सिखाने ही मैं यहाँ आया हूं। तुम्हारे सभी किले मेरे हवाले करके मेरी शरण में आ जाओ। अपना घमंड छोड़कर इस अफजल खान से मिलो। आओ शिवा, आओ, ऐसे डरो मत मुझसे, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। बोलते बोलते आलिंगन देने के लिए खान ने अपनी बाहें फैलाई। वो अपनी बाहों में शिवाजी राजा को, स्वराज्य को, मां साहब के पुत्र सुख को और सह्याद्री के दिल को कुचल डालना चाहता था। खान ने पूरी ताकत से आलिंगन दिया। महाकाय खान के सामने राजा बच्चे से लग रहे थे। राजा का मस्तक खान के कंधे तक पहुंच रहा था। अचानक खान ने राजा का सर दबाया। कुछ समझ में आए उसके पहले ही खान ने अपनी कटार निकाली और जोर से उसने वो कटार राजा के पेट में घुसेड़ दी। राजा को कोई असर नहीं पहुंचा, क्योंकि अंदर बख्तर पहना हुआ था। अब खान को राजा की चाल समझ में आई। उसने राजा का गला दबाया, पर खान को जरा सा भी समय न देते हुए राजा ने बड़ी फुर्ती से बिछुआ के दांत खान के पेट में घुसेड़ दिए। खान की अंतड़ियां पेट चीर कर बाहर आ गई। वो जोरों से चीख उठा, या अल्लाह, दगा हुआ है, लहू, दुश्मन ने मेरा कत्ल किया है, मेरा कत्ल किया, पकड़ो उसे, पकड़ो, काट डालो। अपने पेट के जख्म को दोनों हाथों से दबाता हुआ खान चिल्ला रहा था। खान शर्माने से पकड़ रहा। उसके आदमी तेजी से पालकी लेकर आया। कैसे वैसे खान पालके पर चढ़ गया। तभी सैयद बंडा शामिल हुआ। उसने राजा पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। ये देखते राजा का अंगरक्षक जीवा महाल भाग कर आया। बंडा वार करने ही वाला था, तभी जीवा ने बंडा को ठार मारा। अरे था जीवा तो बचे शिवा, अरे था जीवा तो बचे शिवा। So you have seen, students, how Afzal Khan was defeated by Shivaji, and I hope you have understood and liked this story very much. Now we will go to the next part, that is the expedition of Siddhi Jawar and escape from Panhala. The expedition of Siddhi Jawar and the escape from Panhala fort. Shivaji Maharaj captured the Adil Shahi forts of Panhala, Vasantgarh and Khelna. He renamed Khelna as Vishalgarh.
Now Shivaji Maharaj had posed a big problem for the Adilshai, and it was a big challenge before them. So Adilshai sent Siddhi Jawhar against Shivaji in 1660 CE. Shivaji Maharaj took shelter in the Pannala fort and was trapped there. So Netoji Palkar, here you can see the photo of Netoji Palkar, he tried to raise the siege by attacking Siddhi Jawhar. So Siddhi Jawhar's army was attacked from the outside of the fort, but Netoji Palkar was not successful. Later on, a young man named Shiva Kashid offered to help Shivaji. Shiva Kashid was looking similar to Shivaji, so he said he will offer his services to help Shivaji. So he went into the fort and dressed himself up like Shivaji. Meanwhile, Shivaji was accompanied by Baji Prabhu Deshpande. Here you can see the picture of Baji Prabhu Deshpande, Bandal Deshmukh, and some chosen soldiers, and escaped from another route. He took another route, while the Shiva Kashid, who dressed up as Shivaji, had come in place of him. Now let us watch this short animated clip on the escape of Shivaji from Pannala fort. छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा किला जीत लिया और किले के आसपास गांव वालों को पता चला कि अब हम स्वराज्य में आ गए हैं। किले के नीचे ही गांव में रहने वाले कुछ जवान लड़के आपस में बैठकर बातें करने लगे। अब हम स्वराज्य के लिए काम करेंगे, स्वराज्य के लिए लड़ेंगे, और सब लोग हाँ में हाँ मिलाते रहे। उसमें मेभापुर गांव का एक लड़का था, उसका नाम था शिवा काशी। वो दिखता था हुबेहूब छत्रपति शिवाजी जैसा, नाम भी राजा जैसा, उसका बोलना चलना राजा की तरह, उसका चेहरा हुबेहूब राजा जैसा, और मन में एक ही विचार, जिएंगे तो शिवाजी महाराज की तरह और लड़ेंगे तो शिवबा की तरह। फरवरी 1660 में पन्हाड़ा किला को सिद्दी जोहर ने घेर लिया। सिद्दी जोहर के पास लगभग 65,000 की सेना थी। नेताजी पालकर ने सिद्दी हिलाल के साथ मिलकर एक बार सिद्दी के छावनी पर छापा मारा, लेकिन नेताजी पालकर को हार माननी पड़ी और महाराज ने तभी तय किया कि अब ताकत से नहीं दिमाग से काम करना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई। अपने जैसे दिखने वाले शिवा काशिद को बुलाया और उससे कहा, आप हमारे जैसे दिखते हो, हम आपको हमारे लिबास में देखना चाहते हैं। शिवा काशिद तैयार हो गया और बोला, अभी आता हूं महाराज। उसने महाराज की लिबास परिधान किया, सर पर झिरी टोप चढ़ाया और राजा की तरह चलते चलते महाराज के सामने आया। महाराज देखते ही रह गए और बोले, मैं अपनी तस्वीर शीशे में देख रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है। महाराज, अब वो सिद्धि मुझे नहीं पहचानेगा ना? महाराज देखते ही रह गए। तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें अपना रूप लेके सिद्धि के पास भेजने वाले हैं? महाराज, इतने दिनों से आपके साथ काम कर रहा हूं, आपके दिल की धड़कन भी क्या कहती है हमें पता चल जाता है। आप बोलो, कब जाना है? देखता हूं उस सिद्धि को। शिवा काशिद की ये बात सुनकर महाराज भावुक हो गए और आगे आए और उसे गले लगाया। बारिश का मौसम था। शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे, सितोजी नाईक और निम्बाळकर इन चंद साथियों के साथ पन्हाड़ा किला से विशालगढ़ की ओर चल पड़े और उसी वक्त शिवा काशिद शिवाजी महाराज बनकर सिद्दी जोहर से बात करने पालकी में बैठकर चल पड़ा। सिद्दी राह ही देख रहा था। जैसे ही पालकी आई, सिद्दी बोला, आओ शिवाजी आओ, और उसने महाराज का स्वागत किया। शिवाजी महाराज और सिद्दी शामियाने के ओर बढ़ने लगे। शामियाने तक पहुंचे। ये शिवाजी नहीं हो सकता। ये बात सुनकर सिद्दी भड़क गए और उसने शमशीर निकाली और महाराज को रोक कर पूछा, बोलो, तुम ही हो शिवाजी?
शिवा काशिद बोल रहा था। हाँ, मैं ही हूँ शिवाजी। सिद्धि ने शमशेर से वार किया और पूछा, क्या तुम ही हो शिवाजी? ऐसे बार बार सिद्धि पूछता रहा और शिवा काशिद बोलता रहा, हाँ, मैं ही हूँ शिवाजी, मैं ही हूँ शिवाजी। तभी सिद्धि की नजर सरदार फाजल खान पर गई और उसे पूछने लगा, क्या तुम कैसे कह सकते हो कि ये शिवाजी नहीं है? हुजूर, मैंने शिवाजी को देखा है। जब अफजल खान की मौत हो गई तब मैं वहां था। उस लड़ाई में शिवाजी के सर पर एक घाव लगा था। अगर ये सचमुच शिवाजी है तो उसके सर पर घाव का निशान होना चाहिए। सिद्धि आगे आया और शिवाजी की तरफ बढ़कर उसके सर का जिरेटोप निकाला। घाव नहीं था, शिवा पकड़ा गया। सिद्धि ने शिवा पर जोर से शमशेर चलाई और उसको पूछा, मरने से पहले आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता, तू ही है शिवाजी? शिवा काशिद बोल रहा है, जन्म से मैं शिवा काशिद हूं, लेकिन मरते वक्त शिवाजी महाराज होकर मर रहा हूं। ये बात मेरे लिए बहुत भाग्य की है। और शिवा काशिद शहीद हो गए। And this comes to the end of this lesson. I hope and I'm sure you all have enjoyed this lesson very much. Isn't it? I'm sure you have all done. Now there's a quiz after this. So be ready in Google Classroom